अस्सलाम वालेकुम हिस्ट्री एंकर्स। ये ज़मीन ऐसी है कि यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है। जब मैं यहाँ पर था, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि लोकल लोगों से मिलना चाहिए, लोकल लोगों में मिक्स होना चाहिए, खाली एक सयाह की तरह नहीं रहना चाहिए। होटलों में आए, चंद मखसूस जगहों पे खाना खाया, मखसूस जगहों पे रहे, मखसूस जगहें देखी और वापस चले गए। मेरी आदत है, और मेरी जो भी लोग सयाहत करते हैं, शौकीन हैं, उनको ये मशवरा है कि ऐसा ज़रूर करेंगे कि हमेशा आपको कोई ना कोई ऐसी लेजेंड मिल जाती है। एक ऐसे लेजेंड यहाँ पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ जिनका नाम है अबू खदीजा। अबू खदीजा की कहानी आजकल यरूशलेम में बहुत मशहूर है, और मैं थोड़ी आपको कहानी बताना चाहता हूँ कि ये हुआ था। मैं उनसे अंग्रेज़ी में बात करूँगा, और चूँकि यह अरबी में, तो चूँकि उन्हें उर्दू आती नहीं, बाद में मैं सारा उर्दू में एक्सप्लेन कर दूँगा। वो खतीजा जो हैं, ये यहाँ पर कदीम यरूशलेम के अंदर दुकानदार हैं। कदीम यरूशलेम में हूँ और मैं दीवार गिरिया के बहुत करीब, यहाँ से थोड़ा आगे जाएं तकरीबन 200-300 मीटर तो दीवार गिरिया है। तो इनकी एक आबाई दुकान है यहाँ पर, जो कई नस्लों से इनके पास है, और ये अपनी उस दुकान के अंदर कोई खुदाई वगैरह करा रहे थे, कोई रेनोवेशन करा रहे थे, तो उनको एक सुरंग मिली। और वो सुरंग जो है वो टेम्पल माउंट यानी हरम शरीफ की तरफ जा रही है। उस सुरंग में कोई ऐसा राज है कि इनको यहाँ की इसराइली हुकूमत ने बहुत एक ख़तीर रकम ऑफ़र की कि तुम ये सुरंग जो है ये हमें, ये दुकान बेच दो, लेकिन वो नहीं बेच रहे। हाँ है, ढूंढने की कोशिश करते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैफा? ये अबू खतीजा के बेटे हैं। सलाम सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैफा? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। ये अबू खतीजा, the owner of the shop, who discovered the tunnel while doing some renovation at his shop, and his son speaks English, he only speaks Arabic, so I'll try and get his son there. tunnel. तो ये यहाँ पे रेनोवेशन का काम करा रहे थे। You want to see the tunnel? Yalla. First thing, أهلا وسهلا بكم. Second thing, all this is not for me. This what Islam. What's mean what Islam? And all the Muslim, from here, brother, we go to Aqsa. From here we go to Baba. From here we go to church. From here we go to the mosque. So this tunnel goes everywhere. 7 tunnels. 7 tunnels inside. Here, original Jerusalem, brothers. Oh, here before 2,300 years. Here before Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam. Here before Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam. For that, I have message for all the Muslims in the world. We say it in Arabic language, the Palestinian language, Inshallah. Inshallah, come to Jerusalem. Inshallah, come to Masjid Aqsa. When you come here, don't say come visit, don't say come tourist. You need to say we are come to our home, to our land, to our country. Why? Because Quran says Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إنما المؤمنون إخوة. They doesn't say cousin, doesn't say neighbor, doesn't say friend, doesn't say anything. Just he said all the Muslim, it's a brother. For that we say again and again and again, Inshallah, Inshallah. Come to Jerusalem, come to pray in Masjid Aqsa. Masjid Aqsa not for me, not for you, not for anyone, just for all the Muslim. Your house, your country, your home. We say please, please don't leave us. Don't leave Masjid Aqsa. Don't leave Jerusalem. أهلا وسهلا بكم. I want to show you. From what do you want, Abu Khadija? Here I have a question. The Jews, they ask me, what do you want? Never. I don't want anything. Why? Because this what Islam. Here I have a question. How I can sell things not for me? How I can be partner for things not for me? This is for all the Ummah. My father, Allah yarhamu, he is my father. He died before 3 years. They told me, you are here slave
your security, you are Amin for three things. Anyone come here, I told him, I am stage for him. I am Amin for him. I am security for him. For that we said, don't leave Masjid Aqsa, don't leave Jerusalem, don't leave Bayt al-Maqdis, don't leave Masr al-Rasul alayhi salatu wasalam. Wallahi, wallahi, wallahi. The Gaza, they ask all the Muslims one question, what you are doing for the Aqsa? We shine to say we come tourist. We shine to say we come to visit. We need to say we come to our home, to our country, to our land, to our Aqsa. Allah yarda alayk. तो आपने अबू खतीजा का पैगाम सुना, ना सिर्फ मेरे लिए तमाम मुसलमानों के लिए। उन्होंने वो टनल दिखाई जो उन्होंने इत्तेफाक से खोदते हुए अपने घर, अपनी रेस्टोरेंट में कोई रेनोवेशन करा रहे थे, और ये टनल उन्होंने नीचे उतर के देखा है, और ये टनल दीवार गरिया को जाती है, मस्जिद अक्सा जाती है नई, और सॉरी मस्जिद अक्सा कदीम, मस्जिद बुर्राक में जाती है, और इसके अलावा हरम शरीफ की 3-4 जगहों पर और भी जाती है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इनको यहाँ की हुकूमत ने बहुत एक ख़तीर रकम ऑफ़र की कि आप ये अपना दुकान हमें बेच दें, हम इसको आर्कियोलॉजी के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने नहीं बेची, और उनका पैगाम, और आप में से जो भी ये वीलॉग देख रहे हैं, आप ज़रूर अबू खतीजा की दुकान पर आइए, इनकी मदद कीजिए, इनकी सपोर्ट कीजिए। वो कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं बेच रहा कि ये मेरी अमानत, ये मेरी नहीं है, ये यहाँ का जो वक्फ़ है जो इस हरम शरीफ का इंतज़ाम करता है, ये उसकी अमानत है, मैं इसे नहीं बेच सकता। बहुत एक उनका एक काइंड एक्ट है। अल्लाह उनको इस्तकामत दे, और आप में से जो भी लोग यहाँ पर आएँ, इनसे ज़रूर मिलें। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नेक इंसान है, कोई आपसे पैसों की तवक्को नहीं करते, सिर्फ वो आपसे ही कहते हैं कि मेरा पैगाम आगे पहुँचाओ। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीलॉग अबू खतीजा के और उनकी सीक्रेट सुरंग के बारे में पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।